नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। शेयर करें ताकि अधिक से अधिक रिटायरी साथियों तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाए, पब्लिक एट लार्ज तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए। रिटायरी साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे मदद होती है और आपका 1 सेकंड खर्च होता है। आइए शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को एक पत्र लिखा था हमने, पहले भी एक नहीं, हमने कई सारे पत्र लिखे। उसके रेफरेंस में एक हमने जो है ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है और उसमें उनको भी एक लेटर की कॉपी दी है कि भाई इसको उनके सामने रख दिया जाए। आइए इसको देखते हैं लेटर को। फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क एंड एग्रीव्ड बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद एनसीआर। और डेट है इसकी 6 जून 2024। ये 6 जून में मैंने पोस्ट कर दिया था, मेल कर दिया था सीजीआई को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, और ये इनको जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के, श्री अतुल एम कुरखेकर, ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। रेस्पेक्टेड सर, ए humble prayer, please place our mail before his lordship CGI, Chief Justice of India. We don't know the procedure, ignorance deserve to be excused, sir. We are among over 7.5 lakhs bank pensioners in the age group of 65 to 95 years. Once one case 005561/2016 5561/2016 covering over 6.5 lakhs plus pension bank pensioners on pension revision and approximately 6 more cases on special allowances and pension updation, gratuity matters, etc. We request you to please place our enclosed application before the Honorable Chief Justice of India for his perusal and necessary orders as he may deem fit and necessary in the matter of the pension revision and others issues of bank pensioners of nationalized banks and other banks. Your help in this regard shall be highly appreciated. We are in great hardships and need your very personal attention. Respectful regards, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। मोबाइल नंबर 8588898205। एनक्लोज्ड एज बिलो। अब ये जो हमने वो लेटर है वो इसमें भेजा जो चीफ जस्टिस को हमने भेजा था पहले, और हमने दूसरा भी एक तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस करी है, वो लेटर भेजा है। तो ये लेटेस्ट चेंजेस मोडिफाइड लेटर आप सुने। प्रे टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली 100001। और ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें हमने मेल एड्रेस दिया। योर ऑनर, वी रेस्पेक्टफुली इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू आवर मेल्स our previous mails dated 15th May 24, 17th of March 24 and others mails addressed to you and mailed to you and Secretary General, Registrar and Registrar Supreme Court with request to place the same before you. मेल को आपके सामने रखें इस रिक्वेस्ट के साथ। We never expect of your honor replying, conveying, acknowledging our letters, but we do hope your kind perusal and action on merit, sir. Expeditious justice is the desire of every petitioner and it is considered the elixir of jurisprudence. It is the prerogative of the Honorable Court to decide how to hear cases on priority basis such as livelihood needs like pension and old age people leading towards the grave. Pension revision SLP number 005561/2016 of MC Singla of Bank Pensioners is pending in the Honorable Supreme Court. It came to hearing stage in 2021 and since then it is stuck in the date after date syndrome. The dispute first arose in the
Honorable Punjab and Haryana High Court in 2012, and since then more than 2,50,000 pensioners, including the petitioners, have died. They could not see the dawn of justice. Even if they get justice today, they will not get any benefit. Pensioners who retired in 1986 and later are in the age group of 80 and 90 years, they are extinguishing day by day. We heard a very loud proclamation that senior citizens, pensioners, etc. must get justice soon, but nothing comes like that in reality. At best, it seems to be appeasing rhetoric. Your Honor, your illustrious father deprived a landmark judgment in pensioners matter, and today that judgment is immortalized by dedicating it as Pensioners Day. We pray for the decision of the above mentioned bank pensioners. SLP, decide our fate. We do not want to die in despair. We want to satisfy the death which is in your hands, and to ensure it is possible, Your Honor, sir, some other contents of our mails is as under. Please. वित्त मंत्रालय की उपेक्षा के शिकार सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, our pending cases in दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर्स हाई कोर्ट्स इन सुप्रीम कोर्ट। महोदय, आपकी संवेदना युक्त वाणी द्वारा देश के सभी नागरिकों को समुचित और त्वरित न्याय दिलाने की प्राथमिकता देने की बात को समय समय पर और विभिन्न अवसरों पर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार दोहराया है। दिनांक 9 अप्रैल 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका त्वरित न्याय दिलाने का एक विचार छपा, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और सुपर सीनियर्स हेतु। आदरणीय महोदय, आप विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र लोकतंत्र के सबसे बड़े न्याय प्रमुख अधिकारी, प्रथम और मुख्य न्यायाधीश हैं, परंतु सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स को न्याय में देरी के चलते वो मर रहे हैं। उन्हें आईबीए के ने मेडिकल इंश्योरेंस से वंचित कर दिया है, और हमारी रिटायर्ड साथियों की पूर्व मेल पर आप दृष्टिपात कर लें। आईबीए ने दिनांक 1/11/2012 से एक बीपीएस लागू किया, रिटायरीज और पेंशनर्स को दरकिनार करते हुए, जिसमें अवैधानिक इलीगल प्रावधान किया गया। स्पेशल अलाउंस जिस पर कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया, पेंशन ग्रेजुटी कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं दिया, उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया, और इससे प्रॉब्लम्स एडेड मोर एंड मोर टू रिटायरीज। विकट परिस्थितियां पैदा हो गई, और साथीगण ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, किंतु डेट्स आफ्टर डेट सिंड्रोम चलता रहा, और कुछ पेंडिंग केसेस को मैं आपको सूची दे रहा हूँ। नंबर 1 WPC 867/2019 computation of gratuity under OSR including 45 days above 30 years service, special allowance 26 days, quotient in calculation, DA included, and 9 to 10% interest on delayed period as per rule. Long time pending in Delhi High Court and others high courts for gratuity recalculations. Dates after date syndrome is continued, process being adopted 8 months after previous date for senior super senior citizens is date given. This time many of them dying every year, और ये 4 जुलाई 2024 को इसको सुनाई की दी रखिए नवंबर के बाद। नेक्स्ट WPC 4532/2019 पेंशन अपडेशन ऑन स्पेशल allowance inclusion for calculation of pension, superannuation benefits and pension updation case। इसमें पेंशन अपडेशन भी है और स्पेशल अलाउंस का केस भी है। लॉन्ग पेंडिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर्स हाई कोर्ट्स, डेट्स आफ्टर डेट्स syndrome being applied, adopted, followed. Next date is 4th July 24, 8 months after the previous date in November 23. Nothing done for seniors, super seniors. Number 3rd, contempt petition civil.
1124/2019 PNB Retired Officers Welfare Association versus Mr. Sunil Mehta CMD PNB and others, contempt of the Honorable Supreme Court General directions in BOB versus G Plani cases CA number 55/15/2012, long pending in Honorable Supreme Court, no relief yet to seniors and super seniors who are dying year after year. Late Mr. Naresh Mittal, who filed it, now expired, waiting for its decision. ये एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे नरेश मित्तल जी, एक्सपायर हुए. नंबर 4 TPC नंबर 00394/2023 रजिस्टर्ड ऑन 18th May 23 by IBA versus KK Kalia and others, listed last as tentative date is 3 May 24. Last time no hearing information yet, nothing done on 3 May 24, no notices to all till date. 1 year passed. IBA playing new strategies. Retirees are depressed and morally degraded. It's counter writ by IBA on gratuity recalculation, special allowance plus pension updation issues on KK Kalia and others plus others. High courts cases IBA DFS गवर्नमेंट लगातार रिटायरीज को जाती रहती है. नो सॉल्यूशन यट. हमारा 5th केस है केस नंबर 1364/2021 अंडर एक्ट 32 एडमिटेड इन 2021 इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. इट्स इन फाइनल stage to discuss and hence date extended again. Now it is converted to appeal. NISI it's RRB Association versus RRB Management अलीगढ़ का है और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर है. नंबर 6 WPC 13510 13,510/2023 कॉमर्शियल बैंक्स रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन दिल्ली हाई कोर्ट पेंडिंग फॉर 1 year. ऑल सीनियर्स सुपर सीनियर्स इन्वॉल्व. पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट इट्स ओन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन. नेक्स्ट डेट हियरिंग इज 4 July 24. ये हमारे साथ अटैच कर रखा है तो उसी डेट में सुनवाई इसकी भी है. 7th CLPC 5561/2017 MC Singla case and others versus PNB and IBA, one of the most important case. Details are about discussed. अभी इसके बारे में हमने शुरू में ही सब डिटेल्स आपके सम्मुख रखी थी. Sir, you are requested to arrange these cases to hear and expedite decide as a Nyay Priya, head of judiciary. Message goes to public and world at large. It should be decided in the light of Nainital High Court double bench CJI, one of the judges Ritu Behari judgment on the writ petition number 75/2023 Mr. Baburam Kashyap versus Canara Bank of E Syndicate Bank on 29th April 24 and all others well established judgments in others cases referred discussed based on it. उसी में सारे डिस्कस भी करे गए. महोदय, वर्ष 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जिसके मूल में सेंट्रल एंड सिविल सर्विसेज रूल्स पेंशनरी बेनिफिट्स 1981 के सारे प्रावधान थे और पेंशन योजना लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था और सृजन पेंशन योजना से जुड़ने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आरबीआई प्रदत्त पीएफ और संकलित ब्याज को सरेंडर करना था और यह पेंशन योजना पूर्व प्रभाव 1/1/1986 से लागू की गई और योजना सफल रही. पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा इसी तरह की पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई जिसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत एक एग्रीमेंट डेटेड 29/10/1993 हुआ और श्री MC सिंगला की मृत्यु हो गई और यह मामला अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले का इंतजार कर रहा है. आपसे अनुरोध है कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के इस वंचित वर्ग को त्वरित न्याय दिलाने की कृपा कीजिए. रिटायरी साथियों को उक्त महज केसेज में न्याय, एरियर इंटरेस्ट और डैमेजेस और हर्जा खर्चा भी दिलवाने की महती कृपा करें. गत अनेकों वर्षों से हमें मेंटल टेंशन में जीवन यापन करना पड़ रहा है. धन्यवाद. अपीलार्थी निवेदक विद बेस्ट रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, सेवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद. सभी ट्रस्ट बैंक रिटायरीज एवं पेंशनर्स की व्यथा कथा और वृत्तांत है यह और निवेदन है यह.
मोबाइल नंबर 8588898205, मेल ID rtyagi975@gmail.com। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, और कोई भी आपको आवश्यकता हो तो सहयोग ले सकते हैं, हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो चाहें वो हमें सहयोग भी दे सकते हैं रेसिप्रोकल।